हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। और बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 के डिस्कशन पर आ गए हैं। बिफोर दिस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। आई डू एक्सपेक्ट ऑल ऑफ अस मस्ट हैव फॉलोड द वीडियोस। हम लोगों ने यूनिट्स पर बातें की थी उस चैप्टर में, मेजरमेंट्स पे बहुत सारी बातें की थी। हम लोग ने स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर के सारे एप्लीकेशन भी थोड़े बहुत समझे थे, और एंड की तरफ हम लोग ने सिंपल पेंडुलम की डिस्कशंस की थी। भाई, इफ एनीबडी हैव एनी डाउट, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विल ट्राई टू हैव अ डाउट सेशन, answering all your doubts, right? So by the way, let's start with our second chapter for the day, and the chapter is motion in one dimension, right? Before we start with the chapter, I expect that all of us must understand the meaning of the term motion, right? The meaning of this term motion. What is the meaning of this term motion? Now, the word motion means change of position with respect to immediate surrounding, right? With respect to immediate surrounding. Now let's take up some examples. अगर हम लोग कोई कार में या कोई ट्रेन में मूव कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो कार या ट्रेन मूविंग है, एंड वी आर मूविंग इन सम डायरेक्शन. So if somebody is sitting beside me, respect to me, the person sitting beside me is at rest, or even the luggages that we have kept with us, जो भी सारे सामान हम कैरी कर रहे हैं, वो सब भी हम लोग के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है. बिकॉज मेरे रिस्पेक्ट में वो लगेज या मेरे रिस्पेक्ट में वो जो पर्सन मेरे बगल में बैठा है, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है. वहीं पर इफ somebody is trying to keep an eye on us, या if somebody from outside the train is trying to observe us कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन मूविंग है, उनके हिसाब से भाई वी आर इन मोशन, इंक्लूडिंग द लगेज, मी एंड द पर्सन सिटिंग beside me, right? So I expect all of us understand the word motion is reference frame dependent. मतलब जो ये वर्ड मोशन है, ये डिपेंड करता है कि किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है. ऑब्वियसली अगर हम लोग ऑब्जर्वर चेंज कर दें तो वही बॉडी जो रेस्ट में था वो मोशन में आता है, और जो बॉडी मोशन में था वो रेस्ट में आ जाता है. जैसे मेरे रिस्पेक्ट में मेरा लगेज और मेरे बगल बैठा हुआ रेस्ट में था, वहीं पे ट्रेन के बाहर से बैठने वाले के हिसाब से हम लोग सभी मोशन में थे. एंड दे कैन बी मेनी मोर एग्जांपल्स लाइक दिस, राइट? लाइक फॉर अस ऑल द बिल्डिंग्स और व्हाटएवर वी सी अराउंड like a tree or something is at rest. But if somebody try to observe this building from outside the earth, right? Everything on earth is in motion, because even earth is in motion, right? वो बिल्डिंग जो तुम्हें लग रहा है रेस्ट पर है, अर्थ के बाहर से वो बिल्डिंग भी मोशन में दिखेगा, वो पेड़ भी मोशन में दिखने वाला है. तो whenever you talk about motion or rest, it's really important to talk about the reference frame. It's really important to talk about किसके respect में वो body rest पर है या motion में है. That's really important. Before we proceed further, now there is one more term called in one dimension. Now what do you mean by the word one dimension? Okay, let's take it like this. सबसे पहले, whenever we go to a movie hall and we say like we are going to watch a 3D movie, what do you mean by a 3D movie? 3 dimension. 3D means 3 dimension. 3 dimension means if I say I want to locate where my eye is, or I want to locate where this marker or pen is in this room, and I take a reference somewhere in the corner of this room, we require 3 coordinates to locate this pen. We require 3 coordinates to locate this pen. How? If you take one of the corner as origin, you need 3 mutually perpendicular axes to locate this, like x, like a y, and like a z. So with change of time, if x, y, and z, all the 3 coordinates of this marker or this pen is changing, we say the motion is motion in 3D. Whereas with time, with the passage of time, with passing time, only x and y, let's say only 2 coordinates are changing, we say it's a motion in 2D. Whereas with change of time, if only one variable is changing, we say it's a motion in 1D, right? Let's say we can also say, if we talk about a motion in a straight line, so if the object initially was here, after some time it is there, and after some time it is there, and after some time it is there. So with the passing time, with the change of time,
there is only change of one variable called x. We say the motion here is motion in 1D. So motion in 1D is also said to be as a motion in straight line. ठीक है, मोशन इन 1D is also said to be a motion in straight line. मैं सारी बातों को फिर से बताता हूं. मैं कहता हूं जब भी समय जब पास कर रहा है, विद पासिंग टाइम हम लोग अगर सिर्फ एक वेरिएबल बदले, हम लोग कहते हैं मोशन इन 1D है. एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहा हो, मतलब मैंने कोई बॉडी को लोकेट किया और मैं समय के साथ उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहा है, हम लोग कहते हैं उसे मोशन इन 2D. जैसे एक दीवार पर जब चींटी चलती है तो चींटी सीधी भी जा सकती है, टेढ़ी कैसे भी जा सकती है. नाउ विद द पासिंग टाइम आई से द एक्स एंड वाई बोथ द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंट इज चेंजिंग. राइट, विल टॉक अबाउट दिस. दैट्स कॉल्ड मोशन इन 2D. ओके, so what is motion in 1D? With passing time only one variable is changing, like the x coordinate, because when you want to locate that particle you require, let's say, only x, and with the passing time only one coordinate is changing. We say motion in 1D, or also said to be as motion in a straight line. In our standard of class 9 we are only sticking with the discussion of motion in straight line or motion in 1D. हम लोग अपने स्टैंडर्ड में सिर्फ मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पर ही बात करने वाले हैं. ठीक है, 2D और 3D में बात करने के लिए हम लोग को बहुत सारे वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट चाहिए. वेक्टर्स क्या मैं बताता हूं आगे चलकर. ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग के लेवल पर हम लोग को मोशन इन 1D पर ही बात करना है. बाय द वे, सिलेबस अगर हम लोग देख लें, हम लोग क्या कवर करने वाले हैं. हम लोग यहाँ पे स्केलर एंड वेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं. ये ऑर्डर रहने वाला है क्लास का. डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विदाउट डेरिवेशंस, ये सारी बात करने वाले हैं. इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स पे बात करेंगे कि भाई स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहा जाता है, किसे स्केलर कहते हैं, किसे वेक्टर कहते हैं, रेस्ट और मोशन का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, स्पीड वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है, उन लोग का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन क्या होता है. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोग के सिलेबस में नहीं, हम लोग के सिलेबस में सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. और नीचे कुछ इक्वेशंस दिख रहे हैं भाई, कुछ फॉर्मुलाज दिख रहे हैं, इनके हम लोग कुछ बेसिक लॉजिक और इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे. ये वाला चीज हम लोग के सिलेबस में नहीं है. नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद आवर डिस्कशन, सबसे पहली बात मैंने लास्ट वाले चैप्टर में बताया था, क्वांटिटीज को जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं हम लोग हमेशा एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं उसे बताते वक्त. राइट, क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, कुछ क्वांटिटीज को बताते वक्त हम लोग को वैल्यू सिर्फ बताने से काम हो जाता है. वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड. जैसे मैंने बताया कि भाई मेरे घर पे मेरे एक बॉक्स है किचन में जहां पे 10 केजी चीनी है, 10 केजी शुगर है. राइट, 10 केजी मतलब मास है, बता दिया मैंने, है ना. मुझे यह बताना नहीं पड़ा कि भाई वो 10 केजी शुगर का मास किस तरफ एक्ट कर रहा है. मुझे बस बताना था 10 केजी शुगर है, दैट्स इट. 10 केजी शुगर से, दैट्स इट. 10 केजी शुगर बताने से मेरा काम हो गया, मुझे नहीं बताना पड़ता है वहां पे डायरेक्शन. राइट, तो जिन क्वांटिटी को बताते वक्त मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड, जिन्हें हम लोग वैल्यू भी बोलते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है, मतलब सिर्फ वैल्यू बताना पड़ता है, उस तरह की क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. वहीं पर कुछ क्वांटिटीज को बताते वक्त, जैसे मैंने किसी बॉडी को धक्का मारा, किस तरफ मारा और कितने जोर से मारा, 10 न्यूटन का फोर्स दिया पर किस तरफ दिया, मतलब मुझे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की बात करनी पड़ती है. वैसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी. ये जो क्वांटिटी होती है इसका बदलने का मतलब सिर्फ वैल्यू को बदलना. जैसे मैं बोलता हूं किसी का स्पीड बदला, लेट्स से किसी बॉडी की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड और वो हो गई 20 मीटर पर सेकंड. ठीक है, या फिर लेट्स से जो मेरे पास, मैंने वही शुगर का बॉक्स बोला, वहां पे 10 केजी शुगर था और वहां पे 5 केजी शुगर बचा, बिकॉज 5 केजी शुगर यूज हो गया लेट्स से. ठीक है, तो यहां बताते वक्त हम लोगों ने सिर्फ वैल्यू की बात की. तो दिस क्वांटिटी चेंजेस विद द चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली. यहां पर लेट्स से एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इस तरफ. हम लोग कहेंगे अगर अब वेलोसिटी इस तरफ है 10 मीटर पर सेकंड, भले ही मैग्नीट्यूड नहीं चेंज किया बट डायरेक्शन चेंज किया ना, हम लोग कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो गई. वेलोसिटी का बदलना मतलब वैल्यू या डायरेक्शन, दो में से कोई भी एक चीज बदलना. तो वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है. दोनों का अपना अपना एक पोजीशन है, दोनों का अपना अपना एक बोलते हैं एक काम है. दोनों में से कोई भी चीज बदला मतलब हम लोग बोलेंगे क्वांटिटी चेंज हुआ. ठीक है, हम लोग के रियल वर्ल्ड में दो तरह की क्वांटिटीज हैं, स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर क्वांटिटीज उन्हें कहते हैं जिन्हें बताते वक्त हमें सिर्फ वैल्यू बताना पड़ता है. वेक्टर जिन्हें बताते मुझे वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा ताकि उसका कंप्लीट मीनिंग समझ में आए. ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है? ग्रेट. दिस चेंजेस विद मैग्नीट्यूड.
एंड डायरेक्शन। या तो मैग्नीट्यूड बदलो तो भी चेंज होगा, डायरेक्शन बदलो तो भी चेंज होगा। ठीक, इट कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मेथड। तुम लोग आज तक जो भी 3 + 3 6 बोलते हो, या 3 - 2 1 बोलते हो, या 3 2 6 बोलते हो, या फिर जो भी 3/2 1.5, जो भी ये सब सीखे हो, ये सारे स्केलर के कैलकुलेशंस है, ये सारे स्केलर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन रूल है, राइट। whereas it follows different algebra for addition, subtraction, multiplication and division. By the way, मैं डिवीजन पे तो कभी बात नहीं करूंगा। जब हम लोग 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं तो हम लोग वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस पर बात करेंगे। बिकॉज जिन क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, लेट्स से हम लोग कहीं यहां से इस तरफ डिस्प्लेस हुए, लेट्स से 2 मीटर्स, फिर यहां से कहीं इस तरफ गए, लेट्स से 3 मीटर्स, तो ऑब्वियसली एक नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह की हुई, यस और नो। अब ये लेंथ कितना है, ये एंगल कितना है, ये सब कैलकुलेट करना हमें अभी नहीं आता है, इनके लिए फॉर्मूला क्या हमें नहीं पता है। तो ऐसे तरह के क्वांटिटी को ऐड करना, जिसमें देखो 2 मीटर इधर गए, फिर 3 मीटर इधर गए, ऑब्वियसली ये कोई एंगल था मान लो 30 डिग्री, तो ये नेट किधर से किधर गए और ये किस एंगल पर गए, ये फाइंड करना मुझे नहीं आता। इनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करने का इसका अलजेब्रा है, वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं इसे हम लोग क्लास 11 की शुरुआत में सीखते हैं। अभी वेक्टर्स पर बात हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, बस इसके बेसिक्स जान के रख रहे हैं कि रियल वर्ल्ड में जो भी चीज को हम लोग मेजर करते हैं, whatever we can measure are called physical quantities. They are of 2 types, scalars and vectors, right? Whatever you can measure in real world are said to be physical quantities. They are of 2 types, scalar quantity and vector quantity. Scalar quantities are those which has only magnitude in it to give its complete meaning or sense, whereas vector quantities are those which has both magnitude as well as direction to give a complete sense into it. ठीक है? The examples are for scalar mass, length मतलब the distance, time, distance, density, mass by volume, speed, temperature, no, work, energy, power. All these are the examples of scalar, because whenever we talk about these quantities, we only talk about the magnitude or the value of it, right? Magnitude means value. Whereas when you talk about these quantities, you talk about both value and direction, like displacement, velocity, acceleration, force, weight. यहाँ पे जब भी हम लोग बात करते हैं वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन की बात भी करते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने बोला भाई मैं यहां से यहां गया, मुझे डायरेक्शन बताना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, विल टॉक अबाउट दिस इन ग्रेट डिटेल इन दिस सेशन ओनली। ठीक है ना। तो क्वांटिटीज 2 तरह के, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो हम लोग बात करेंगे हर एक क्वांटिटी को लेकर, जैसे हम लोग के डिस्कशन में डिस्टेंस आने ही वाला है। तो जब बात करेंगे डिस्टेंस की तो हम लोग बात करेंगे अच्छा डिस्टेंस एक स्केलर है, इसलिए सिर्फ वैल्यू बताने से काम हो जाता है। ठीक है, ओके। तो कुछ क्वांटिटी को बताते वक्त खाली वैल्यू काफी है उसका कंप्लीट सेंस देने के लिए, वेरस कुछ वैल्यू को बताते वक्त, कुछ क्वांटिटी को बताते वक्त वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है ताकि इसका कंप्लीट मीनिंग या सेंस आ पाए। देयर इज सम सिंपल इमेजेस फॉर यू। देयर इज अ पर्सन, यहां पे एक दिखाया जा रहा है कि एक इंसान है, वो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, उसकी नजर से पेड़ जो है पीछे जा रहा है। देखिए ना, कभी ट्रेन में जब आगे जाते तो लगता है ना बाहर में जो पेड़ है पीछे जा रहा है, फील होता है ये चीज? हम लोग को लगता नहीं, हम लोग नहीं आगे जा रहे हैं, बाहर का पेड़ है जो पीछे जा रहा है, राइट? यस और नो? मेरे बगल का जो लगेज यहां पे पड़ा हुआ है, सामान है, बगल में एक और चेयर है, ये सामने वाला चेयर है, मेरे रिस्पेक्ट में ये चेयर रेस्ट पर है ना? मेरे रिस्पेक्ट में बाहर का पेड़ पीछे जा रहा है। अब बाहर वाले की नजर से देखा जाए, बाहर की नजर से देखा जाए तो भाई ट्रेन आगे जा रहा है, अंदर की नजर से देखा जाए तो नहीं, पेड़ या फिर प्लेटफॉर्म या फिर बाहर के लोग पीछे जा रहे हैं। ठीक है ना? अब इसके नजर से ये इंसान रेस्ट पर है, ठीक है, और वो ट्रेन में अंदर बैठे हुए इंसान के हिसाब से ये इंसान पीछे जा रहा होगा। मैं बात समझ आ रहा है? तो रेस्ट एंड मोशन दोनों फ्रेम टू फ्रेम चेंज हो जाएंगे। अगर फ्रेम चेंज कर दिया जाए, ऑब्जर्वर चेंज कर दिया जाए, तो जो दिख रहा होता है वो बदल जाता है। मतलब सारी बातें रेस्ट या मोशन ये फ्रेम डिपेंडेंट है, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। कौन बता रहा है उस पर निर्भर करता है। बोलने वाला इंसान बदल दिया जाए तो चीजें बदल जाएंगी, है ना? मैं बोलूंगा इसके रेस्पेक्ट में तो बाहर की पेड़ पीछे जा रही है, मैं बोलूंगा इसके रेस्पेक्ट में तो ये भी इंसान रेस्ट में, पेड़ भी रेस्ट में, नहीं ये आदमी, ये जो ट्रेन है ये आगे जा रहा है, राइट? आई होप यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हाउ डू वी डिफाइन rest and motion? A body is said to be at rest. Please understand this. A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its immediate surroundings. मैंने ये बात
क्लास के शुरुआत में बताया था। मैं बोलता हूं अगर ये कोई पत्थर है, ये रेस्ट पर है, क्यों? यहां इस जमीन के रिस्पेक्ट में, या फिर यहां पे कोई एक पेड़ होगा उसके रिस्पेक्ट में, या फिर यहां पे जो एक आदमी खड़ा होगा उसके रिस्पेक्ट में, ये जो चीज है जगह नहीं बदल रहा है। यहां पे एक पेड़ है, इसके रिस्पेक्ट में जगह नहीं बदल रहा है। ये पेड़ को मेरे को पता है, मेरा ये पेड़ एग्जांपल है रेस्ट का, लेट से ये पेड़ फिक्स है और इस पेड़ से इसका दूरी या फिर पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में बदल नहीं रहा है। पेड़ के जिस साइड में जहां पे था उधर में उस साइड पे खड़ा है, हम लोग बोलेंगे ये पत्थर भी फिर रेस्ट पे है। ठीक है, हमेशा जब भी कोई चीज को हम रेस्ट पे बोलते हैं ना, तो हम लोग, जैसे एग्जांपल हो, तुमने कोई रास्ते में कोई ट्यूब कल देखा, कोई नल देखा, तुम उसके बगल में एक बिल्डिंग देखोगे, दिमाग में मतलब चलता है, तुम शायद इसको रियलाइज नहीं कियोगे, बट ये होता है, बगल में तुम एक बिल्डिंग देखोगे, बोलोगे वो बिल्डिंग देखें, क्या है वो बिल्डिंग से उस नल का दूरी बदल नहीं रहा है समय के साथ, राइट? हम लोग बोलेंगे अच्छा नल रेस्ट पर है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्लियर है कि बिल्डिंग मूव नहीं करता है ना? अ बॉडी इज सेड टू बी एट मोशन इफ इट चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। जैसे ये बदल रहा है जगह, कैसे? यहां पे देखो, इस आसपास के रिस्पेक्ट में, ये इस घास फूसा के रिस्पेक्ट में ये आगे जा रहा है, राइट? जैसे इसने मारा भाई, ये आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, बिकॉज इसका सराउंडिंग बदल रहा है ना। देखो ये बगल का ये सब चीज, तो ये मेरे को पता है, ये सारे जो बाहर की चीजें ना, ये रेस्ट पे ही है, ये फिक्स रहती है, ये बदलती नहीं है अपनी जगह, है ना? तो ऑब्वियसली ये अपना जगह बदल रहा है। एवरीथिंग इज रिलेटिव, मैं कोटेशन बोलता हूं, एवरीथिंग इज रिलेटिव, निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, राइट? ग्रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोशन इन अ straight line or motion in 1D. So when a body moves along a straight line path, it is said to be in one dimensional motion or motion in one dimension 1D, राइट? यहां पे देखो ये जो बॉल है ये सीधा घूमते घूमते इधर ही जा रहा है कि रास्ते पे जा रहा है, ये लेफ्ट राइट टर्न नहीं कर रहा है, राइट? जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे, हम लोग उसी को मोशन इन 1D कहते हैं। जैसे यहां पर एक बॉडी एक लाइन में सीधा नीचे ही गिर रहा है, जैसे ये बस एक लाइन में एक तरफ ही जा रहा है, ये लेफ्ट राइट कोई टर्निंग नहीं ले रहा, राइट? तो दैट्स लाइक अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन 1D। नाउ विल टॉक अबाउट दिस। आई होप मोशन के बारे में सबको समझ आ गया कि मोशन का और रेस्ट का मतलब क्या होता है। आई एक्सपेक्ट सबको समझ में आ गया है कि भाई क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड with the first term of this chapter. The first term is distance and displacement. ठीक है? Now if a guy wants to reach here and obviously यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें कहीं से कहीं पहुंचना होता है, बट जैसे मान लो उस पर जाने के लिए तुम्हें ये पाथ फॉलो करना पड़ा। Let's say this guy has followed this path, right? The path covered, this length of this path covered, the length of this path covered is said to be the distance, whereas the shortest possible distance, or whereas the shortest possible line joining the initial and final position is said to be displacement, right? भाई जो पाथ कवर किया गया इसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, और ये जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होता है इसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ दिस पाथ कवर्ड, एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब तुम कोई भी तरह का पाथ फॉलो करके जाओ, तुम थे कहां और कहां पहुंच गए, उसे जोड़ता हुआ जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है डिस्टेंस। यहां से देख के एक बात समझ में आता है कि जनरली क्या होता है, डिस्टेंस जो होगा वो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। बस एक मौका होता है जब डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। पता है कब? जब हम लोग एक ही लाइन पर एक ही तरफ जाए और डायरेक्शन चेंज ना करें, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट? ग्रेट। नाउ डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू विच अ बॉडी मूव्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलो इस पर बात कर रहे हैं इसके पहले। जैसे मान लो यहां पर हम लोग बहुत बार गूगल मैप पे देखते हैं ना, तो गूगल मैप से एग्जांपल लिया गया है। लेट्स से ये कोई जगह है न्यूयॉर्क में, बड़ा फेमस जगह है, ठीक है, मनातन। अगर यहां पे अपने कहीं हैं और यहां से कहीं यहां पहुंचना है, तो ये जो ब्लू रास्ता दिख रहा है ना भाई, ये पाथ फॉलो करके तुम यहां से मान लो यहां पहुंचते हो, तो व्हाट इज द डिस्टेंस? दिस इज द डिस्टेंस, राइट? हम लोग बहुत बार देखते हैं ना, जब हम लोग उबर या ओला से बुक करते हैं
तो गूगल मैप, या फिर हम लोग कभी भी गूगल मैप यूज करके हम लोग को रोड ट्रैक करना हो तो दिखाया जाता है अच्छा ये रास्ता फॉलो करना है, और रोड का एक लेंथ आता है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वो डिस्टेंस होता है, राइट? वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वो डिस्टेंस होता है। जैसे यहां पे दिया हुआ है भाई, डिस्टेंस बिटवीन द मार्कर इज 0.6 mi एंड ड्राइविंग डिस्टेंस इज 1.6 mi, राइट? यहां से यहां पहुंचने में जो ये लेंथ कवर करना पड़ेगा, वेयर इज दिस शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन ज्वाइनिंग इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्टेंस, है ना, जो पाथ हम लोग कवर करेंगे, पाथ फॉलो करेंगे। तो भाई ये जो लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड होता है इसे कहते हैं डिस्टेंस, और ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन होता है इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की यूनिट जो है वो है मीटर, डिस्प्लेसमेंट की भी यही रहेगी। सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर। लेंथ का जो यूनिट होता है हम लोग पढ़े फंडामेंटल क्वांटिटीज में, मास, लेंथ, टाइम, है ना, करंट, टेम्परेचर, है ना, एंगल पे बात की है हम लोग, ये सारा बात कर चुके हैं वहां पर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी भी बात की है। बाय द वे हम लोग लेंथ की बात करें, लेंथ की ऐसा यूनिट है मीटर और सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर, राइट? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यहां पर मतलब नहीं पड़ता कहां से कहां गए, यहां पे लंबाई मेजर करनी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, यहां पे बस ये लंबाई नापना है, ये पाथ कितना ट्रेवल हो ये नापना है। तो द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू विच अ बॉडी मूव्स इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। कौन सा पाथ फॉलो किए उस पर डिपेंड करता है डिस्टेंस, और ये जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन है ये है डिस्प्लेसमेंट। वापस देखो मैंने एग्जांपल वही लिया, ये देखो ये लाइन दिख रहा है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, और इसमें डायरेक्शन की बात भी करते हो, अच्छा तुमको उधर जाना है तो ऐसे बोले भैया उस तरफ जाना है ना। हम लोग जब भी बहुत बात करते हैं, हम लोग कहीं पे खड़े हैं मान लो, और हम लोग को किसी भी एक लोकेशन में जाना है, पर जब भी किसी से बात करते हैं हम लोग उस तरफ जाएंगे बोल देते हैं। ऑब्वियसली तुम एक पाथ अलग तरह का फॉलो करने वाले हो, बट तुम्हारा इशारा उस तरफ ही रहता है। तो जब भी तुम लोग बात करते हो किसी लोकेशन का, किसी को तुम लोकेट करते हो, तो हमेशा एक डायरेक्शन की बात भी करते हो। तो फाइनली ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, जिसे बताते वक्त डायरेक्शन की बात भी होती है और मैग्नीट्यूड की बात भी होती है। इस लेंथ को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, गूगल मैप पे दिखता है ना, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ अगर होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस ज्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से, बिकॉज वो ये तरह का पाथ फॉलो करके पहुंचे, पर ये है डिस्प्लेसमेंट, है ना। बहुत कभी कभार ऐसा होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए, हमेशा डिस्प्लेसमेंट छोटा ही होता है, बस कभी कभार ही बराबर हो सकता है। कब बराबर होता है हम लोग उस पर बात करेंगे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल, एक लाइन यूज किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल position of the body is the magnitude of the displacement and its direction is from the initial position to the final position। मतलब ये अगर इनिशियल है, मैंने थोड़े पहले बताया, और ये फाइनल है, इनिशियल से फाइनल को जोड़ता हुआ जो डायरेक्शन होता है उसे डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर कहेंगे। और ये जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल स्ट्रेट लाइन होगा, इसी को इसका मैग्नीट्यूड या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू कहेंगे, किसका? ऑफ डिस्प्लेसमेंट का। यूनिट वही है, यूनिट क्या है? यूनिट मीटर है। ये क्वांटिटी क्या है? वेक्टर है। लास्ट वाला क्या था? लास्ट वाला क्या था? स्केलर था। ये वाला क्या है? वेक्टर है। इसे बताते वक्त डायरेक्शन बताना पड़ता है, इसे बताते वक्त डायरेक्शन बताना नहीं पड़ा था। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं लग रहा था और डिस्टेंस में डायरेक्शन लग रहा था बताने में। ठीक है, ग्रेट। तो अब डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं, डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं फटाफट। इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन टाइम। ये तो लेंथ मैंने बताया। ये क्या है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ सर्टेन टाइम। हम लोग पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं। हो सकता है हम लोग ऐसा पाथ फॉलो नहीं किए हो, बट हम लोग बस इनिशियल से फाइनल को जोड़ते हुए जो लाइन है इसकी लेंथ को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन टाइम, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ सर्टेन टाइम। यहां पर डायरेक्शन की बात करनी पड़ती है, तुमको डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी। यहां पर ये क्वांटिटी स्केलर है, दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। तुम्हें तो बस इनिशियल से फाइनल को जोड़ना है, और जो तुम्हें डिस्टेंस दिखेगा वही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैं बताऊंगा इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। मैं इस पर डिटेलिंग करने वाला हूं, थोड़ा टाइम दो मेरे को इसके लिए, राइट। इट कैन बी मोर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया कि जनरली डिस्प्लेसमेंट छोटा या मैक्स टू मैक्स बराबर हो सकता है डिस्टेंस के, तो इट्स मैग्नीट्यूड शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस। तो मैं ये 4th नंबर पॉइंट और 5th नंबर पॉइंट पे और बात करने वाला हूं
ये स्केलर है, ये वेक्टर है, पता लग चुका है। ये पाथ फॉरवर्ड पर डिपेंड करता है, वो पाथ फॉरवर्ड पर डिपेंड नहीं करता बिकॉज इनिशियल से फाइनल को जोड़ना है। और पहले वाला पॉइंट जो वो एक तरह से डेफिनेशन की तरह है कि यहाँ पे डायरेक्शन की बात करनी है किसी डायरेक्शन में, यहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात नहीं करनी है, राइट। ओके, नाउ कैन डिस्प्लेसमेंट बी जीरो इवन इफ द डिस्टेंस इज नॉट जीरो? नॉट जीरो का मतलब जैसे यहां पर एक बॉडी बाउंस कर रहा है, बाउंस कर रहा है, बाउंस कर रहा है, द मोमेंट बॉडी वापस जब इधर पहुंच रहा है तो देखा जाए इसका डिस्प्लेसमेंट यहां पर जीरो हो जा रहा है, पर डिस्टेंस जो ट्रेवल किया ना, ये लेंथ, फिर ये लेंथ, फिर ये लेंथ, फिर ये लेंथ, राइट। यहां पर सर्कुलर पाथ में जब एक इंसान सर्कुलर मोशन करता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 पाई आर, पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? जीरो, बिकॉज इनिशियल पॉइंट वही, फाइनल पॉइंट वही, स्टार्ट और फिनिश एक ही जगह पर, जहां से शुरू के वहीं पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहां पे? जीरो, बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 पाई आर। यस और नो? समझ आ रहा है? ओके, नाउ यहां पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ये समझने के लिए कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है बट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। सुनना बात, हम लोग जब 1D मोशन पे बात करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मोशन पे, और जब हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं बच्चों, मैं इस इमेज पर बाद में आ रहा हूं जो बोर्ड पे दिया हुआ है, इसकी पहले समझना। तो जब हम लोग 1D मोशन में बात करते हैं, मैं लिखता हूं कहीं पर मैं +3 मीटर डिस्प्लेस किया, इस प्लस का मतलब होता है डायरेक्शन। लेट्स से अगर हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दें तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन को नेगेटिव बोला जाएगा, ठीक है, ठीक है। जब भी मोशन 1D होता है तो प्लस साइन और माइनस साइन वहां पे डायरेक्शन असाइन करता है, राइट। से पॉजिटिव इज वन डायरेक्शन, नेगेटिव इज द अदर ऑपोजिट डायरेक्शन, because the 1D motion, straight line motion, there's only two direction, one is plus, the other is minus, yes or no? So now if you go +3 meter, matlab you have moved this way. Now if you say -3 meter, you move that way, the opposite direction. If you talk about +5 meter, you move that way. If you move -5 meter, you move this way. So plus and minus will talk about directions. Plus is one direction, minus is the exactly opposite direction. Whereas when you talk about distance, you are not bothered about the direction. You are not never bothered about the direction. You only talk about the length covered, right? So let's have some example. Let's talk about the example. Okay, here there's an example. There's a guy starts from 0 meter. It went 6 meter, then went to 2 meter. So 6 plus 4 कितना हुआ? 10 मीटर. Time लगा 4.4. So distance by time is your speed. This is like one of the way you can understand what is speed, by the way. So I guess we have understood what is distance and displacement. I'm just trying to tell you how and why we can say that displacement can be positive or negative, because in one dimension, when you talk about direction, you use plus and minus sign to talk about directions. Let's say if you say plus, that's one direction, and minus is the exactly opposite direction, right? So now let's talk about speed here then in this concern. So what is speed, by the way? The speed of a body is the rate of change of distance with time. मतलब the rate with which you are covering the path. The rate with which you are covering the path. भाई गाड़ियों में स्पीडोमीटर होता है, वेलोसिटी मीटर नहीं होता। मैं बात करूंगा दो टर्म है, स्पीड और वेलोसिटी, पर भी स्पीड की बात करें तो स्पीडोमीटर मतलब क्या हुआ? वो देखता है कि किस रेट से तुम पाथ कवर कर रहे हो, डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तुम किस तरफ जा रहे हो, लेफ्ट जा रहे हो, राइट जा रहे हो, उससे मतलब नहीं है, राइट। सो the speed of a body is the rate of change of distance with time. मतलब किस रेट से डिस्टेंस कवर हो रहा है उसे कहते हैं हम लोग स्पीड। तो यहां पे एग्जांपल दिखाया गया, 10 मीटर्स कवर हुआ कितने देर में? जब वो स्टार्ट किया और वो जब वापस 2 पर पहुंचा, कितना टाइम लग गया? 4.4 सेकंड्स। 4.4 सेकंड्स, so 10 by 4.4 seconds is like 2.27 meter per second is the speed. The unit of speed then is distance by time, है ना, मतलब मीटर पर सेकेंड। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यू टॉक ओनली अबाउट मैग्नीट्यूड। दिख ही रहा है डिस्टेंस बाय टाइम, स्केलर बाय स्केलर, डिस्टेंस बाय टाइम, स्केलर बाय स्केलर, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। न्यूमेरिकली इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड। पर सेकेंड तुम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो ये बताता है स्पीड। अगर तुम्हारे गाड़ी का स्पीड दिखता है 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब 80 किलोमीटर कवर होगा 1 घंटे में अगर उसी स्पीड से गाड़ी चलता रहता तो, राइट। ओके, नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट? सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैसे? डिस्टेंस
अगर मीटर में है तो मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट? ग्रेट. नाउ देयर आर टर्म्स लाइक यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म. तो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट यूनिफॉर्म, ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा. अगर स्पीड एक जैसा है, ऑब्वियसली जिस रेट से वो डिस्टेंस कवर कर रहा था वो नहीं बदल रहा है. तो a body is said to be moving with a uniform speed if it covers equal distance. If it covers equal distance, right? मतलब 10 मीटर कवर कर रहा है 1 सेकंड में, आगे भी 10 मीटर कवर कर रहा है 1 सेकंड में, या 10 मीटर कवर कर रहा है 2 सेकंड में, आगे भी 10 मीटर कवर कर रहा है 2 सेकंड में, राइट? Equal interval of time throughout its motion. Throughout its motion, a body is said to be moving with uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time. उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा उतने ही टाइम में. 10 मीटर कवर किया 2 सेकंड में, फिर 10 मीटर ही कवर किया 2 सेकंड में, फिर 10 मीटर ही कवर किया 2 सेकंड, मतलब एक तरह से 10/2 5 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड. वी से इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन. हालांकि यूनिफॉर्म मोशन रियल लाइफ में नहीं होता है. तुम रास्ते में जब भी गाड़ी चलाते हो तो अचानक से कोई आ जाता है सामने, कोई गड्ढा पड़ जाता है ना, कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है, ट्रैफिक पड़ जाता है, तो यूनिफॉर्म स्पीड वाली बात जनरली होती नहीं है. रियल लाइफ में कौन सा स्पीड होता है? नॉन यूनिफॉर्म होता है. नॉन यूनिफॉर्म क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग with non-uniform or variable speed if it covers unequal distance in equal interval of time. मतलब 10 मीटर कवर किया कभी 2 सेकंड में, फिर 5 मीटर कवर किया 2 सेकंड में, फिर 2 मीटर कवर किया 2 सेकंड में, फिर 1 मीटर कवर नहीं किया 2 सेकंड में, मतलब 0 मीटर कवर किया 2 सेकंड में. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड. एग्जाम्पल क्या है इसका? अ बॉल मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन सरफेस. ये है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, चलता जा रहा है, बॉल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है. एक बॉल को तुम फेंके, कोई फ्रिक्शन, कोई रोक टोक नहीं, वो चलता जा रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम करता रहा. ये जो कि ये सब आइडियल बात है, सब रियल में नहीं होता है, सब काल्पनिक बात है, नो इमेजिनरी फैक्ट्स. अब मूविंग मतलब रियल लाइफ में तो तुम्हें फ्रिक्शन दिखेगा ही, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिल ही जाएगा, है ना. अब मूविंग ऑन रफ सरफेस, कोई बॉडी को तुम फेंके कोई रफ सरफेस पे, या तुम रियल लाइफ केस ले लो, तुम कोई गाड़ी चला रहे हो, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही रहेगा वहां पर. नाउ एक टर्म है इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक टर्म है एवरेज स्पीड. जब भी तुम बात करते हो डिस्टेंस बाय टाइम की, और अगर तुम टाइम इंटरवल बहुत छोटा लेते हो, तब तुम बात करते हो इंस्टेंटेनियस. बच्चों, वर्ड इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है उस मोमेंट का स्पीड, और वर्ड एवरेज का मतलब होता है तुम डिस्टेंस कवर किए इन टोटल, मतलब बड़े इंटरवल ऑफ टाइम पर जब बात करते हो, तुम बोलते हो टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड. तुम या तो फिर गाड़ी चला रहे थे और तुम किसी एक मोमेंट का स्पीड का बात कर रहे थे, तुमको अपने स्पीडोमीटर में स्पीड दिख रहा है 80 किलोमीटर पर आवर, कभी दिखता है, अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर उस इंस्टेंट का स्पीड है, वो एवरेज नहीं है. तो जब कभी डिस्टेंस कवर्ड ओवर अ पर्टिकुलर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की बात करते हैं, वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड. जब तुम्हारा टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा तो वो एवरेजिंग नहीं हो रहा, वो उस इंस्टेंट का, उस मोमेंट का स्पीड बताया जा रहा है. जब इंटरवल बड़ा होता है तो हम लोग एवरेज की बात करते हैं. कभी भी एवरेज मतलब बड़ा इंटरवल, इंस्टेंटेनियस मतलब छोटा इंटरवल ऑफ टाइम. जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस देख रहे हो वो स्मॉल इंटरवल देखते हो. तो यहां पर द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल टू द टाइम इंटरवल, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल टू द टाइम इंटरवल. ऑब्वियसली ये स्पीडी है, ये तो स्पीडी है, तो कैटेगरी से तो स्केलर ही रहेगा, है ना. यहां पर क्या हो रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ शॉर्ट टाइम इंटरवल बाय द टाइम इंटरवल. बहुत छोटे टाइम इंटरवल पे जो डिस्टेंस कवर होता है बाय टाइम इंटरवल भी छोटा सा होना चाहिए, इट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड. हम लोग इस पर ज्यादा बात अपने लेवल पर अभी नहीं करेंगे, इस पर बात हम लोग क्लास 11 में करते हैं. क्लास 11 जब शुरू होता है तो हम लोग बहुत बात करते हैं इस पर, और इसको बात करने के लिए तुम्हें कैलकुलस बोल के एक टॉपिक है, उसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है. इस पर बात अभी नहीं करेंगे. एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. जब हम लोग बड़े टाइम इंटरवल बात करते हैं कि मान लो हम लोग कहीं से कहीं गए, रुके, चले, ट्रैफिक लगा, धक्का मारे, जो भी करते 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 यहां पहुंचे, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड द एवरेज. कि एवरेज है कितना स्पीड लगा. हम लोग हमेशा एवरेज की बात भी रियल लाइफ में करते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी. लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी. तो जैसे डिस्टेंस बाय टाइम तुम्हारा स्पीड था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी होती है. तो देखो यहां पे एक वर्ड है +3 मीटर पर सेकंड, दिख रहा है, दिख रहा है. यहां पे एक प्राणी है ना, एक प्राणी है यहां पर, एक प्राणी है यहां पर. वो स्टार्ट किया, टाइम बीत रहा है, हर एक सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, वो हर एक सेकंड में 3 मीटर कवर करता जा रहा है, हर एक सेकंड में 3 मीटर कवर करता जा रहा है. यहां पे ये दिखाया जा रहा है.
हर 1 सेकंड में 3 मीटर, फिर हर 1 सेकंड में 3 मीटर, फिर एक नेक्स्ट सेकंड में 3 मीटर, फिर एक और सेकंड में 3 मीटर, फिर एक और 3 मीटर, फिर एक और 3 मीटर, फिर एक और 3 मीटर, मतलब हर सेकंड 3 मीटर कवर कर रहा है। और डायरेक्शन अगर बताना है तो यहां पे प्लस साइन लगा दिया गया, प्लस बताता अच्छा इस तरफ बॉडी जा रहा है, माइनस मतलब क्या होता है इस तरफ बॉडी जा रहा होता, ठीक है, मतलब 3 मीटर एवरी सेकेंड दिस साइड, प्लस का मतलब ही हुआ -3 मीटर पर सेकेंड अगर लिखते तो क्या होता, मतलब प्राणी इस तरफ जा रहा होता। अगर -10 मीटर पर सेकेंड होता तो मतलब क्या होता, 10 मीटर हर सेकंड इस तरफ कवर कर रहा होता। +10 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता, हर सेकंड 10 मीटर उस तरफ कवर कर रहा होता। डायरेक्शन का बात करना पड़ेगा। व्हाट इज वेलोसिटी बाय द वे, देन वेलोसिटी इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है वेलोसिटी, ठीक है। सारी बात ऐसे ही करेंगे, यहां पे भी हम लोग इंस्टेंटेनियस एवरेज की बात करेंगे, यहां पे यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म की बात करेंगे, बट सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि वेलोसिटी होता है क्या है। तो द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड बाय द बॉडी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा, 1D मोशन है ना, 1D मोशन है, तो इसलिए यहां पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस बोल के भी काम बन जा रहा है, इसलिए यहां पे काम बन गया, बट डिस्प्लेसमेंट वुड बी मोर एप्ट, ठीक है। तो क्या होता, अगर इस तरफ जा रहे हैं तो बोलना पड़ेगा हाँ 3 मीटर इस तरफ पर सेकंड, डायरेक्शन बताना पड़ेगा, वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड बाय द बॉडी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। और तुम बोलोगे सर मैंने तो बताया अभी डिस्प्लेसमेंट और यहां पे तो डिस्टेंस लिखा है, क्या है कि ज्यादा एप्ट डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ठीक है, पर क्योंकि 1D मोशन है, 1D मोशन है, मोशन ही 1D है, तो यहां पे तुम डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो बात बराबर, बिकॉज यहां पे जब तुम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। डायरेक्शन जब चेंज करोगे तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग रहेगा। हमेशा प्रेफर्ड पर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम रहेगा, याद रखना, डिस्टेंस बाय टाइम प्रेफर्ड उतना नहीं है, ट्राई टू राइट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 1 सेकंड। वही तो बात हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मैंने क्या बोला, 3 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है हर सेकंड, है ना, ये वेलोसिटी है। और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट में क्या था, खाली बताना पड़ता था ना कि डायरेक्शन कौन सा है, तो हम लोग बोले 3 मीटर इस तरफ जा रहा है हर 1 सेकंड में, यही वेलोसिटी है। अगर 6 मीटर कवर कर रहे हो 2 सेकंड में, तो 3 मीटर कवर कर रहे हो 1 सेकंड में, वही, राइट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज यहां पे डायरेक्शन की बात करनी पड़ती है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है मीटर और ये भी टाइम है सेकंड, तो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड और इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकंड, SI या CGS यूनिट हो गया, राइट। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, मैंने जैसे बताया था, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि भाई तुम उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहे हो उतने ही टाइम में, यहां पे वेलोसिटी है, ठीक है, तुम उतना ही डिस्प्लेसमेंट करो उतने ही टाइम में और उसी तरफ करो, डायरेक्शन भी सेम रहे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम रहेगा, तब होगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहां पर अगर डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड कुछ भी चेंज हो गया, हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिकॉज स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना होता था, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना होता है, राइट। So if a body travels equal distance in a particular direction, in a particular direction, देखो बात मेंशन किया है, particular direction, in equal intervals of time, that body is said to be moving with a uniform velocity। भाई सब लोग पॉज कर करके, रिवाइंड कर करके, पीछे जाकर, आगे जाकर चीजों को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है ना, ताकि चीजें याद हो जाए। देखो भाई, if a body travels, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम लोग बोलेंगे बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है अगर वो उसी तरफ जाते रहे और उसी रेट से जाता रहे जिस रेट से वो जा रहा था, वो बदले ना, और डायरेक्शन भी ना बदले, रेट भी ना बदले, तो हम लोग कहेंगे यहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसकी एग्जांपल क्या है भाई, रेन ड्रॉप्स रीचिंग द अर्थ सरफेस। जो बारिश की बूंदे बच्चों गिरती है ना, ये एक पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड से गिरी होती है, हम लोग इस स्पीड को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और ये नीचे गिर रही है या फिर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में गिर रही है, कोई स्लैंट एंगल हो सकता है, नीचे ऐसा हो सकता है, और इसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती है। मतलब एक हाइट में आने के बाद ना पानी का बूंद जो है ना वो एक्सेलरेट नहीं करता है। तुम्हें लगता होगा सर वहां पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी काम कर रहा हो सकता है, स्पीड अप हो, नहीं होता है।
वो एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरता है। वो क्यों कांस्टेंट स्पीड से बारिश की बूंद नीचे आती है, उस पर भी एक अलग साइंस है, उस पर बाद में बात करेंगे, अभी बात नहीं करने वाले। तो रेन ड्रॉप ना एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आती है और पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रही होती है। तो दैट्स वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेयर एज रियल लाइफ में तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ज्यादा है। तो इफ अ बॉडी मूव्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तुम अगर डायरेक्शन फिक्स कर दो पर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, मान लो पहले 3 मीटर 1 सेकंड में हुआ, फिर 2 मीटर 1 सेकंड में हुआ, फिर 1 मीटर 1 सेकंड में हुआ, फिर 10 मीटर 1 सेकंड में हुआ, तो दैट्स अगेन मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म। तुम अगर डायरेक्शन भी चेंज करोगे ना, यहां पे मेंशन नहीं है डायरेक्शन के बारे में, पर डायरेक्शन भी चेंज होगा ना तो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। भले तुम 10 मीटर पर सेकंड से इधर गए, फिर 10 मीटर पर सेकंड से इधर गए, फिर 10 मीटर पर सेकंड से इधर गए, तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, यू से इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो यहां पे लिखा है इफ अ बॉडी मूव्स अनइक्वल डिस्टेंस, जैसे यहां पे था बॉडी मूव्स इक्वल डिस्टेंस, यहां बॉडी मूव्स अनइक्वल डिस्टेंस in a particular direction in equal interval of time, or it moves equal distance in equal interval of time, but its direction of motion does not remain same। देखो बात भी आगे बता दिया गया, direction of motion does not remain same, right, does not remain the same। तो डायरेक्शन बदलना मतलब नॉन यूनिफॉर्म, या फिर मैग्नीट्यूड बदलना तो भी नॉन यूनिफॉर्म। एग्जाम्पल इसके ढेरों हो सकते हैं। जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल करता है बच्चों, यहां पे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है जब वो नीचे जा रहा होता है, या फिर कोई भी सर्कुलर मोशन होता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे आगे चलकर। एक बॉडी है, उसका स्पीड कांस्टेंट है बट उसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, मान लो, हम लोग कहेंगे ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल रहेगा। मतलब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जो तुम कवर कर रहे हो पर सेकंड, या तो वो बदले, या तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड भले ही सेम रहे पर तुम डायरेक्शन चेंज करो, कभी इधर जा रहे हो, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, डायरेक्शन चेंज करो तो भी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ये तुम दोनों चेंज करो, वैल्यू भी चेंज करो, डायरेक्शन भी चेंज करो, तो भी नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटीज के एग्जांपल बहुत सारे हम लोग रियल लाइफ में, हम लोग जो भी रास्ता में गाड़ी में घूमते हैं, तुम कभी कहीं जाते हो, तुम कभी कहीं जाते हो, तुम किस सीधा गए, फिर लेफ्ट टर्न ले लिए, फिर किसी रूम में घुस गए, तुम ऑब्वियसली अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। दोज ऑल आर एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब भी अपने आसपास तुम कभी भी अब से कभी मूव करो ना, खुद को एक बार याद दिलाते रहो, अच्छा ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या तुमने थोड़ी देर तक, तुम एक सीधे रास्ते में एक स्पीड से चल रहे थे, एक वेलोसिटी चल रहे थे, बोले हाँ यूनिफॉर्म था, डायरेक्शन लेफ्ट लिया, अरे डायरेक्शन चेंज हुआ, ये नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल हो गया। ठीक है, इस तरह खुद को याद करवाते रहो। ढेरों एग्जांपल्स अपने आसपास। इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, मैंने वापस बताना है। एवरेज का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। जब इंटरवल ऑफ टाइम बड़ा होता है उसे कहते हैं एवरेज, जब इंटरवल ऑफ टाइम छोटा होता है बच्चों उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस। बच्चों इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब होता है, उस इंस्टेंट का मतलब इंस्टेंट वर्ड होता है पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, पर्टिकुलर क्षण के लिए हिंदी में बोला जाता है, पर्टिकुलर मोमेंट, है ना, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट। मान लो तुमने बात किया कि अच्छा अभी बज रहा है, लेट से बज रहा है, अभी मान लेते हैं 1:40 और 10 सेकंड, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या वेलोसिटी थी ये बताओ, इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उस पर्टिकुलर मोमेंट पर, उस पर्टिकुलर सेकंड पर, तो तुम्हें क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और बहुत छोटा सा इंटरवल ऑफ टाइम लो, मतलब 1:40 के 10 सेकंड से 11वां भी मत होने दो, छोटा सा टाइम इंटरवल लो, उस छोटे से इंटरवल में तुमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसे नोट करो, बाय टाइम इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल बाय टाइम इंटरवल। इधर क्या लिखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन फॉर अ टाइम इंटरवल विच इज वेरी स्मॉल। जब टाइम इंटरवल बड़ा हो तो एवरेज, जब टाइम इंटरवल जिस पर तुम डिस्प्लेसमेंट के नीचे रख रहे हो अगर वो छोटा है उसे कहोगे इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस मतलब तुम उस छोटे से टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको रिकॉर्ड करो, वो डिस्प्लेसमेंट वो भाई वो छोटा सा इंटरवल जिस इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका जो रेशियो होगा ये होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेयरएज अगर ये रेशियो जो लिया जा रहा है ये टाइम इंटरवल बड़ा लिया गया, मान लो तुम कहीं से घूमते फिरते कहीं पहुंचे, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट बाय ये टोटल टाइम जो टाइम लगा तुम्हें यहां से यहां पहुंचने में, ये डिवाइड करोगे, ये जो आएगा ये आएगा एवरेज वेलोसिटी। यहां पे गलती से स्पीड लिखा गया है, ये वेलोसिटी होना चाहिए। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बाय द वे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियसली वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन की बात करनी पड़ती है, इंस्टेंटेनियस हो या फिर एवरेज हो डायरेक्शन की बात करनी पड़ती है, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यहां पे गलती से स्पीड आ गया तो ये वेलोसिटी होगा। आई होप सब लोग ने नोट कर लिया, राइट। ओके, तो अब हम लोग का आज का लास्ट डिस्कशन बच्चों, इस टॉपिक का लास्ट डिस्कशन, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है।
भाई स्पीड एक स्केलर है, बाय द वे यहां पे सबसे पहला पॉइंट मैं मार्क करता हूं, स्पीड एक स्केलर है। इसे बताते वक्त मुझे सिर्फ वैल्यू की बात करनी है, डायरेक्शन की बात नहीं करनी है। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूं यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात भी करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी बताते हुए बोलना पड़ता है अच्छा इस तरफ नहीं, अच्छा उस तरफ। हालांकि 1D मोशन है तो प्लस और माइनस साइन काफी होता है डायरेक्शन असाइन करने के लिए, राइट? ओके, व्हाट इज स्पीड? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड। पहला वाला पॉइंट हमेशा डेफिनेशन होता है, डिफरेंसेस तो ऐसे याद करते हो ना। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड बाय अ बॉडी बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ठीक है भाई, हम लोग अपने करिकुलम को भी मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, इससे सारे डिफरेंसेस और डेफिनेशंस पढ़ते हुए जाते हैं। मैं एक्सपर्ट हूं, ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं। हम लोग के करिकुलम में हम लोग को डेफिनेशन डिफरेंसेस जानना भी जरूरी है। फिजिकल फील लेना है वो लेते रहेंगे, कंसेप्चुअली खुद को स्ट्रॉन्ग करेंगे, बट सारी बातों को जानते हुए जाएंगे, ठीक है ना। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स स्पीड। कितना डिस्टेंस कवर होता है हर सेकंड में कहते हैं स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहिए, पर सेकंड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहां पे ये पर्टिकुलर डायरेक्शन वाला बात इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा क्वांटिटी जिसे बताते वक्त वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ता है। द स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव सिंस डायरेक्शन इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। यहां पर हम लोग का वैल्यू हमेशा 3 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड बोलने वाले हैं, बिकॉज डायरेक्शन की बात होती नहीं है। तो प्लस माइनस साइन देखो, कोई खास फर्क नहीं बना पाओगे तुम, बिकॉज यहां पे प्लस माइनस साइन का मतलब नहीं है, बिकॉज ये स्केलर है। यहां पर प्लस माइनस साइन हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन इस तरफ है तो पॉजिटिव बोल दो, मोशन इस तरफ है तो नेगेटिव बोल दो। तो तुम्हारा 1D मोशन में प्लस और माइनस साइन तुम्हें डायरेक्शन वाला फील दे देगा कि अच्छा +5 मीटर पर सेकेंड मतलब इस तरफ, -5 मतलब इस तरफ, राइट? Now, after one round in a circular path, the average speed is not 0. हम लोग जानते हैं कि एक circular round के बाद you have already covered some distance. So you say that distance by time is some speed. And that's called, by the way, ये over बड़ा इंटरवल ले रहे हैं ना, तो ये जो स्पीड कौन सा स्पीड है? ये एवरेज स्पीड है, ठीक है ना? ये एवरेज स्पीड है। आफ्टर कंप्लीटिंग ईच राउंड इन अ सर्कुलर पाथ, ऑब्वियसली तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी इज 0। डिस्टेंस 0 नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट 0, तो वहीं से वहीं पहुंच गए। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ देखा जाता है ना डिस्प्लेसमेंट में। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं भाई? दो तरह की बात की, एक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि बीतते हुए टाइम के साथ तुम किस तरह से डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो, ये डिफरेंस बनाता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। और एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हो गया कि भाई तुम एक बड़े इंटरवल को ले रहे हो और एक छोटे इंटरवल को ले रहे हो। तुमको अगर बात करना है, जैसे हम लोग रियल लाइफ में ना ज्यादातर एवरेज की बात करते हैं कि अच्छा यहां से वहां पहुंचे में इन एवरेज कितना टाइम लगा, इन एवरेज कितना स्पीड से गए, इन एवरेज क्या वेलोसिटी फॉलो किए। वहीं पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात तो हम लोग करते नहीं है, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात जरूर करते हैं स्पीडोमीटर में देखकर, ठीक है? तो आई होप ये बात सबको क्लियर होगा। दो तरह की बात है, एक होता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। ये डिफरेंस देख लो, किसके आधार पर है, किस बेसिस पर है। ये ऑन द बेसिस ऑफ गाड़ी किस तरह से चली, और ये किसके आधार पर है? ये आधार है कि भाई हम लोग को किसी को बताना है कि मेरी गाड़ी क्या वेलोसिटी थी, तो हम लोग बोलेंगे हाँ एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे थे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे थे, राइट? और ये रहा स्पीड एंड वेलोसिटी पर डिफरेंस। आई डू एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड आई एक्सपेक्ट आज हम लोग जो भी सारी बातें की है वो सारी बातें सबको समझ में आई होगी। हम लोगों ने स्टार्ट किया कि मोशन होता क्या है, हम लोगों ने समझा कि क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। रेस्ट ऑन मोशन फ्रेम डिपेंडेंट है, ये बताया मैंने बताया कि रेस्ट या मोशन फ्रेम बदल दिया जाए तो चीजें बदलती है। इसका एग्जांपल ही पीछे का केस था, राइट? हम लोग ने समझा मोशन इन 1D मतलब एक स्ट्रेट लाइन मोशन को कहते हैं। हम लोग समझे कि डिस्टेंस ये पाथ ट्रेवल्ड है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इज डिस्प्लेसमेंट। हम लोग ने समझा डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हम लोग ने समझा डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। हम लोग दोनों के डिफरेंसेस को पढ़े, ये स्केलर है ये वेक्टर है। हम लोग ये भी समझे कि जब कंप्लीट सर्कुलर पाथ होता है डिस्प्लेसमेंट 0 है बट डिस्टेंस नॉन 0 है। तो क्वेश्चन अगर कोई पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या 0 होगा जब डिस्टेंस नॉन 0 है, हाँ हो सकता है, राइट? एंड वी टॉक्ड अबाउट स्पीड, रेट ऑफ डिस्टेंस कवरिंग, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना? वी टॉक्ड अबाउट यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। मैंने बताया कि भाई यूनिफॉर्म का मतलब किस तरह से बॉडी मोशन कर रहा था, वो होता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म।
यूनिफॉर्म मतलब सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम, नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉट द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन द सेम टाइम। इंस्टेंटेनियस मतलब हम लोग जब बात करना होता है कि अच्छा इस गाड़ी का स्पीड ये है, तो लोग पूछे कौन सा स्पीड बता रहे हो, इंस्टेंटेनियस की एवरेज, राइट। Similarly for velocities, we talked about all these terms and there's a difference, right? This much for today. I expect everything what we talked about was like comfortably understood by all of you. Keep watching through all this video. जिनको जो बात समझ में नहीं आई पे पीछे जाओ, रिवाइंड करो, और जो भी डाउट रहे, जिस मोमेंट पर जिस टाइम पर डाउट है उसे नोट करके बताओ, या जो टॉपिक नहीं समझा वो बताओ, हम लोग उस पर और डिटेलिंग कर लेंगे आने वाले सेशन पे। So we'll continue with this in my next session. This much for today. Keep watching, keep learning. Thank you. Bye bye. See you all.